जो है ना वो can the CR or someone else contact him? He's not well, so he's missing today's class, but uh, I know he has a good background of networking, so maybe he will be fine because um, I mean, if someone has a good background in networking, it's most likely that Wakas, I have starred your email. Your query was related to NS2, right? I think I will get back to you, inshallah. Okay, I will try to attach you with someone who is good in NS3, NS2. If I remember, that was your query, right? Okay, I have started recording, so let me now start the lecture. Okay, so we were discussing IP addressing. Okay, is there another chat message? Ji? No, that's okay. Okay, no, sorry, no, we were not discussing IP addressing. We will start the topic of IP addressing today. Okay, it's a very important topic. Okay, and again, for some of you, it may be a slight repetition of their undergraduate concepts because in the UG level, this topic is mostly covered. But we will obviously try to cover it, in much greater detail, and maybe some of the concepts are even new for those who have already an idea of IP addressing. Okay, and we will mainly discuss two types of addressing schemes. We will discuss classful addressing and classless inter-domain routing. Okay, so हम क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ेंगे और क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम आईपी वर्जन 4 की एड्रेसिंग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं. आज और कल ये हमारा पूरा वीक ही इसके ऊपर स्पेंड होगा. ठीक है, 3 लेक्चर्स, लेकिन हम 3 लेक्चर्स में इसको कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, और फिर इन्हीं 3 लेक्चर्स में से हमारा नेक्स्ट क्विज भी होगा नेक्स्ट वीक. ठीक है, आईपी एड्रेसिंग में से हमारा नेक्स्ट क्विज होगा. सो जो हम जो हम बातें आज और कल करेंगे उन्हीं उन्हीं में से हम वी विल हैव अ क्विज नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह. ओके, so let's start. There is no need of recap of any previous topic because the topics are totally uh, not totally, but not really that much related. There is it's not a continuity. It's a totally a new topic. Okay, so IP addressing. An introduction is given on this slide. You can see there is a pictorial representation of a network is being shown over here, and आप देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस जो है वो हम सबको ही पता है कि 32 बिट आइडेंटिफायर होता है किसी भी होस्ट का. ठीक है, एंड 32 बिट्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, बट हम ह्यूमन हमारे लिए मोर निमोनिक है आईपी एड्रेस को डेसिमल में पढ़ना लिखना डील करना. सो वी ऑलवेज instead of this this is what the router understand, but we always say or write or discuss our IP address like this. So 223.1.1.1 is this IP address written over here. So it's a 32-bit identifier written in dotted quad notation. Okay, or dotted decimal notation भी कह सकते हैं इसको. Dotted quad इसलिए कह रहे हैं because we have 4 quadrants basically of 8 bits, right? 4 हिस्से हैं इसके 8 बिट के, बट इसको हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, वन इंपॉर्टेंट थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत आसान है लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं, स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं. आईपी एड्रेस डिवाइस का नहीं होता, इंटरफेस का होता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा. अगर आपके पीसी पे भी 2 निक हैं, 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, तो आपके पास 2 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होंगे. ठीक है, एक वायर्ड इंटरफेस है, एक वायरलेस इंटरफेस है, तो उन दोनों के डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होंगे. आप आईपी कॉन्फिग / ऑल करके इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इस राउटर को अगर आप देखिए तो इसके 3 डिफरेंट इंटरफेसेस के ऊपर 3 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस असाइन हुए हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर आईपी एड्रेसेस आर एसोसिएटेड विद इंटरफेसेस. So there is a separate IP and MAC address for each interface. So it's not a device address. I mean, it is quite possible कि एक डिवाइस का एक ही IP एड्रेस हो, प्रोवाइडेड कि उसके पास एक ही इंटरफेस है. ठीक है, वायर्ड या वायरलेस वट. बट अगर एक से ज़्यादा हैं तो टिपिकली जितने इंटरफेसेस होते हैं उतने IP एड्रेसेस उस डिवाइस के साथ एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, और राउटर के खास तौर पे हर इंटरफेस के साथ एक सेपरेट नेटवर्क अटैच होता है. और हम ये देखें पूरे लेक्चर में ही हम आज और कल ये बातें डिस्कस करेंगे कि जो सेपरेट नेटवर्क है इसकी एड्रेसिंग हम
किस तरीके से करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे राउटर के तीनों इंटरफेसेस के साथ 3 सेपरेट नेटवर्क्स जो हैं वो अटैच हैं, और वो आइडेंटिफिकेशन क्वाइट सिंपल है। अगर आप एड्रेसेस को पढ़ें तो वो एक खास पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप देखें तो ये 1.1 की रेंज के एड्रेसेस हैं। 1.1 इस मशीन का, 1.2 इस मशीन का, 1.3 इस मशीन का, और 1.4 राउटर की इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये 2.1 की नोटेशन के ऊपर चल रहा है। तो 2.1, 2.2, ये 2.3 भी हो सकता है, 2.9 भी, वट एवर, इट्स फाइन। तो ये इंटरफेस का एड्रेस, बट 2 डॉट की रेंज है ये, ठीक है ना। तो दिस इज अ 1 डॉट नेटवर्क, 1 डॉट ओवर हेयर, 1 डॉट समथिंग, 1 डॉट एक्स कह लें आप, ठीक है जी, ओके। एंड दिस इज 2 डॉट एक्स, एंड दिस इज आई एम राइटिंग एक्स, दिस इज 3 डॉट एक्स, ओके। तो आप देखें, और राउटर का जो इंटरफेस है वो भी इसी सबनेट का पार्ट बनेगा। सो उसका एड्रेस भी इस डायरेक्शन में 1 डॉट है, इस डायरेक्शन में 2 डॉट है, और इस डायरेक्शन में 3 डॉट समथिंग है, ठीक है जी। ओवर हियर 3.1, 3.2 एंड 3.27, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि वी विल डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स। वन इज क्लासफुल, ओके, वन इज क्लासफुल right here, and the other one is classless interdomain routing, okay. So first we will discuss classful, and then we will discuss the classless addressing scheme. Classful is relatively simple, easy, and we will discuss it in hopefully in the next 20-25 minutes, but classless के ऊपर हम थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। How VPN changes IP address to ensure anonymity? Well, you are asking a question uh, a little bit far down the line. So I will, Jawad, I will get back to your question. Okay. अभी हमारा जो फ्लो है वो टूट जाएगा। अभी तो बहुत आसान बातों से स्टार्ट लिया है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस, और ये डिपेंड करता है बाय द वे कि ये किस किस वीपीएन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप वो जो एक वीपीएन जो ऑर्गेनाइजेशन खुद फॉर्म करती हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। एक वीपीएन जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी, टू इंश्योर एनोनिमस ब्राउजिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दैट बेसिकली गिव्स यू अ प्राइवेट फील्ड। उसमें वीपीएन कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकती हैं। वीपीएन के पास एक पूल ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। हम नेट भी पढ़ेंगे, हमारी आउटलाइन का पार्ट है, नेटवर्क लेयर के आउटलाइन का पार्ट है। तो हम नेट में भी देखेंगे कि आईपी एड्रेस कैसे प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्जन हो रही होती है उसकी, ठीक है ना। भी पढ़ेंगे जी, टॉर टॉर ब्राउजर या टॉर ब्राउजर की जो सेटिंग है, नहीं टॉर हम नहीं पढ़ेंगे। चलो, तो बहुत सारे टॉपिक्स बन जाएंगे। टॉर को हम नहीं टच करेंगे। ठीक है हाँ जी, अब यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम क्लास टाइम, टॉर से या किसी भी और चीज़ से, ठीक है। अनियन राउटिंग होती है टॉर के अंदर, और उसकी उसकी बेस पर डेफिनेटली टॉर जो है वो एनोनिमिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। बहुत अच्छा यूज़ केस है, लेकिन यूजुअली नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर साइबर के जो जो भी कोर्सेज हैं या लिटरेचर है, उससे उससे रिलेटेड एक टॉपिक बनता है टॉर, ठीक है। स्विचिंग एंड राउटिंग के अंदर हम इसको एज सच नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सो क्लासफुल एड्रेसिंग, ऑब्वियसली इट वाज द ओल्ड मेथड, और ये अब दिस इज नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस, बट it was used in the early days of internet. Let's just very quickly have a look at how the IP version 4 range is divided into classes. But before that, आईपी वर्जन 4 की रेंज है क्या वैसे, बाय द वे, ठीक है। अगर हम नोट करें तो 32 बिट आईपी वर्जन 4 का अगर एड्रेस है, तो उसकी जो रेंज है वो बेसिकली क्या बनेगी, उसकी जो मैक्सिमम रेंज है, उसकी जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो कंप्लीट रेंज है वो क्या बनेगी बेसिकली 32 बिट की, यानी किसी भी बाइनरी में सॉरी जी, किसी भी बाइनरी की जो जितने मर्जी बिट का बाइनरी उसकी जो रेंज होती है वो क्या बनती है, ऑल जीरो से लेके ऑल वंस, ठीक है जी। तो अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो 32 बिट, ऑल जीरोज will be 0.0.0.0 and up to so on, or all of them ones, which means 255.255.255.255, ठीक है जी। तो हम all zeros is not a usable IP address, so हम फर्स्ट ऑक्टेट को अगर 1 डिक्लेयर कर दें तो 1.0.0.0
से लेके 1.0.0.0 से लेके, जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर बिकॉज स्लाइड पे ऑलरेडी ब्लू है। 1.0.0.0 से लेके 255.255.255.255, दिस इज द कंप्लीट रेंज। इस रेंज को इन्होंने 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है जी। इसको क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम कहते हैं। और क्लास ए जो है उसमें आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट जो है ये नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व है, और बाद के 3 ऑक्टेट्स जो हैं, नेक्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो हैं, ये होस्ट आईडी के लिए रिजर्व हैं, ठीक है जी। तो क्लास ए में एड्रेसेस तो कम होंगे, नंबर ऑफ एड्रेसेस, बट हर एड्रेस के अंदर जो रेंज होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो नंबर ऑफ एड्रेसेस क्लास ए में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑक्टेट खाली क्लास ए का जो है ना, ये रिजर्व है फॉर द नेट आईडी बिट्स, ठीक है जी। और जीरो उसमें हम फिक्स कर रहे हैं। सो जीरो अगर आप फिक्स कर दें तो आप जरा ये देखें कि अगर आप जीरो फिक्स कर दें, जीरो 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 बिट जो है वो आप फिक्स कर दें, और उसके बाद आप बाकी 31 बिट को मूव करें, तो उनको आप बेसिकली किस रेंज में मूव कर सकते हैं? आप मूव कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट अगेन 8 जीरोस डॉट अगेन 8 जीरोस डॉट अगेन 8 जीरोस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट है, ये देखें, ये 8 जीरो था, आपने ये जीरो फिक्स कर दिया। यहाँ से लेके आपकी रेंज आ सकती है जी 1 1 1 1 1 1 1, ये 7 वंस हो गए, क्योंकि ये वाली बिट तो आपने फिक्स की हुई है ना, फर्स्ट बिट। और डॉट ऑल वंस इज 255 डॉट ऑल वंस इज 255 डॉट ऑल वंस इज 255। तो अगर आप नोट करें तो फर्स्ट 32 बिट में जो फर्स्ट बिट है, 32 बिट के एड्रेस में जो फर्स्ट बिट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इस बिट में एक वेरिएशन, जीरो से वन कर देना, इज बेसिकली हाफ ऑफ योर एंटायर आईपी एड्रेस स्पेस। तो आप जब जीरो के साथ इसको ऑल जीरो से ऑल वंस तक लेके जाएंगे, और फिर आप वन के साथ इसको ऑल जीरो से ऑल वंस तक लेके जाएंगे, तो ये एंटायर हाफ आपकी IPv4 की स्पेस है। एंड यानी जो ये ऑलमोस्ट 4 बिलियन एड्रेसेस हैं, उसका हाफ ये 2 बिलियन बन जाता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2⁻32 इज अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन, आई बिलीव। सो ये जो रेंज बनती है आपकी, इसमें अगर आप जो फर्स्ट बिट है इसको आप फिक्स कर दें, और उसके बाद ऑब्वियसली ऑल जीरोस यूजेबल नहीं है, तो आप इसको 1 से स्टार्ट लेंगे, तो ये आपकी 1.0.0.0 से लेके ये 7 वंस जो है ना, ये 127 बनते हैं, ठीक है जी। और अगर 8th वन ऐड हो जाता तो 255 बनता, तो 7 वंस हैं, तो 127.255.255.255, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट, ये नेटवर्क आईडी है। तो कितनी नेटवर्क आईडीज हो सकती हैं? बेसिकली 1 से लेके 127 तक, ओनली 127 एड्रेसेस हैं क्लास ए के अंदर, ओनली 127 एड्रेसेस। लेकिन हर एड्रेस के अंदर 2⁻24 होस्ट पॉसिबल हैं, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स हर एड्रेस के अंदर। ओनली 127 एड्रेसेस हैं, लेकिन हर एड्रेस के अंदर 2⁻24 एड्रेसेस पॉसिबल हैं। फिर क्लास बी में आपने, अब ऑब्वियसली अगर फर्स्ट बिट जीरो था, तो उसके बाद बाकी सारी क्लासेस में फर्स्ट बिट 1 होगा, क्योंकि ये हाफ ऑफ द एंटायर एड्रेस स्पेस है, ये बाकी की हाफ स्पेस है, और बाकी सारी क्लासेस बाकी हाफ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो 1, दैट मीन्स कि फर्स्ट बिट आपने फिक्स की क्लास बी में, आप फर्स्ट बिट आपकी 1 है और सेकंड बिट आपने फिक्स की 0, तो अब आपके पास अगर 1 0 आप फिक्स कर देंगे, तो जो जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट, उसमें बाकी 6 बिट्स जो है ना, वो ऑल जीरो से लेके ऑल वंस तक जा सकती हैं। अब आई एनकरेज यू कि आप वैल्यूज पुट करें, ये वैल्यूज, ये डेसिमल में आंसर्स निकलेंगे, ठीक है ना। 1 0 के बाद ऑल जीरोस अगर आप पुट करें तो 128 आता है, और 1 0 के बाद अगर आप ऑल वंस पुट करें, यानी 6 वंस पुट करें, तो 191 आता है, ठीक है। 1 0 1 1 1 1 1 1 इज 191 बेसिकली। और डेफिनेटली बाकी रेंज तो 0.0.0 से लेके 255.255.255 तक ही जाएगी, तो वो यहाँ पे आपके पास मेंशन है। क्लास सी के केस में आप 1 1 ये दोनों फिक्स कर देंगे, ठीक है। और अगर वैसे देखा जाए तो ये 1/4 ऑफ द एंटायर IPv4 स्पेस है, ये वन हाफ है और ये 1/4 है, विच मीन्स के ये तीनों क्लासेस जो है ना फर्दर 1/4 के अंदर आ रही हैं, ठीक है जी। ओके, यानी कि ये 50% ऑफ द एंटायर IPv4 है, ये 25% ऑफ द एंटायर IPv4 है, बिकॉज ये सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। और अब हम सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जीरो करके बाकी सारी की सारी 30 बिट्स को वेरी कर रहे हैं, और फिर हम थर्ड की तरफ और फोर्थ की तरफ एंड अप टू सो ऑन जा रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमने 1 1 फिक्स कर लिया, और थर्ड बिट को हमने 0 फिट किया, और अप टू सो ऑन ये रेंज निकली। सो अब डेसिमल में देख लेते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है।
तो हमारे पास क्लासेस की जो रेंज निकलती है वो कुछ इस तरीके से निकलती है कि 1.0 से लेके 127.255 ये क्लास ए है। आपने क्लासेस को पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले ऑक्टेट को देखना है, बाकी ऑक्टेट्स को नहीं देखना। पहले ऑक्टेट में 127 तक क्लास ए है, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 इस क्लास सी, और 224 से 239 इस क्लास डी एंड देन क्लास ई। हाँ, जो एड्रेसिंग इंटरनेट में हुई, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने जो एड्रेसिंग की, आईकैन ने जो एड्रेसिंग की, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स ने जो एड्रेसिंग की, उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 क्लासेस को उन्होंने यूज़ किया एड्रेसिंग के लिए। क्लास डी को उन्होंने मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व रखा, और क्लास ई को फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व रखा। बट ऑब्वियसली थोड़े अरसे बाद ही उनको रियलाइज़ हो गया कि ये एड्रेसिंग स्कीम रिजिड है, फिक्स्ड है, बुरी है, एंड वी नीड टू हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव। सो वो साइडर की तरफ मूव हो गए, ठीक है, जो कि हम अभी बाद में देखेंगे। बट क्लास फुल के अंदर ये स्कीम चल रही थी, ठीक है जी। और फाइंडिंग अ क्लास एड्रेस इज क्वाइट सिंपल। आप फर्स्ट बिट को देखेंगे, इफ इट इज जीरो दैट्स इट, इट्स अ क्लास ए। इफ इट इज वन यू मूव अहेड। देन आप सेकंड बिट को देखेंगे, इफ इट इज जीरो देन क्लास बी है। अगर सेकंड बिट भी आपकी वन है तो यू मूव अहेड एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। सो इट्स क्वाइट इजी, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। फर्स्ट बिट जीरो है क्लास ए, फर्स्ट वन है आप आगे मूव करेंगे, सेकंड बिट जीरो है तो क्लास बी, अगर सेकंड बिट भी वन है तो आप आगे मूव करेंगे, थर्ड बिट जीरो तो क्लास सी, अदरवाइज आप आगे मूव करेंगे। बट फोर्थ और फिफ्थ जो बिट्स हैं उस तक नौबत इसलिए नहीं आती बिकॉज हम जो एड्रेसिंग के जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, और जो एड्रेसिंग दुनिया ने की इंटरनेट में जो हुई वो क्लास ए बी और सी को ही लेके की गई थी, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ तक तो थी बहुत ही ज़्यादा आसान बातें, ठीक है। सर ये अब जो एक हम यूज करते हैं बहुत कॉमन 192.168.1.1, ये कोई बिट वैल्यू में कोई एक आसान वैल्यू आती है? ये इतना कॉमन क्यों? सॉरी, सर ये इतना कॉमनली क्यों यूज होता है आईपी एड्रेस? कौन सा जो 190 की 192 की जो रेंज है? 192.168.1.1। ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, इसलिए इतना कॉमन यूज होते हैं। ये पब्लिक नहीं है, ठीक है। ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक का मतलब ये यूनिक नहीं है। सो ये आईपी एड्रेसेस जो हैं वो बिहाइंड नेट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम नेट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नेट कैसे जो है वो आईपी एड्रेसेस को कैमोफ्लेज करता है, और नेट की वजह से बेसिकली यूं समझ ले कि नेट की वजह से ही आईपी एड्रेसेस का जो एक कह लें डिप्लीशन थी, बिकॉज ऑफ नेट वो डिप्लीशन स्लो डाउन हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि IPv6 की ज़रूरत क्या पड़ी, बिकॉज आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेसेस थे वो दे स्टार्टेड टू डिप्लीट, ख़त्म होना शुरू हो गए, कम पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि इंटरनेट एट द बिगिनिंग जब हम इस तरह से हमने एड्रेसिंग की एट द वेरी बिगिनिंग, यू सी 1993 इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगो। बट 1993 में रियलाइज हो गया था कि दिस एड्रेसिंग स्कीम इज़ नॉट गुड, बिकॉज इसमें एड्रेसेस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो हम साइडर की तरफ गए। बट सून एनफ साइडराइज्ड एड्रेसेस के अंदर हालांकि वेस्टेज बहुत हद तक मिनिमाइज हो चुका था, बट उसमें भी इवन एड्रेसेस जो हैं वो कम पड़ना शुरू हो गए। तो फिर नेट एक सोल्यूशन के तौर पे आया, और नेट जो है वो ये करता था कि दुनिया भर में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की एक रेंज थी, बल्कि उस स्लाइड पे चले जाते हैं पहले, आपके क्वेश्चन आपने कर ही लिया तो उस स्लाइड पे चले जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की कुछ रेंजेस डिफाइन कर दी गई, जिसमें 192.168 भी थी, 10.0.0.0 की रेंज भी थी। अगर आप नोट करें तो ये यही रेंज है जो पूरे नस्ट में चल रही है, पूरे नस्ट में। 10.3 जो है वो सीक्स है, 10.1 जो है वो मेन ऑफिस हेडक्वार्टर नस्ट है, 10.2 एनबीएस है, 10.4 रिम्स है, एंड 10.9 एसैब है, साडा है, ठीक है जी, एंड अप टू सो ऑन। यही यही रेंज ये नस्ट के अंदर के एड्रेसेस हैं, ये प्राइवेट रेंज है। ये रेंज पूरी दुनिया में जगह जगह रिपीट हो रही होगी, ठीक है जी, बिकॉज ये रेंज अंडरस्टैंडेबल नहीं। पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस में फ़र्क क्या होता है? प्राइवेट एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीनिंग रखता है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर इसके कोई मीनिंग नहीं होते। प्राइवेट एड्रेस जो है वो यूनिक नहीं होता, पब्लिक एड्रेस यूनिक होता है, ठीक है जी। अगर मैं अभी इस वक्त CMD करूं और IP कॉन्फ़िग अपना रन करूं अपनी मशीन पे ipconfig/all, तो मेरे पास जो IP एड्रेस निकल रहा है ये आप देख सकते हैं कि ये 192 की रेंज में है, ठीक है जी। सॉरी, ये तो मेरे गेटवे का है, मेरा अपना IP एड्रेस इज 192.168.18.18, और आप नोट करें कि गेटवे का एड्रेस जो सबनेट है वो भी 18 डॉट समथिंग है, और मेरा सबनेट भी 18 डॉट समथिंग है, ठीक है जी। दोनों सबनेट 18 डॉट समथिंग है, और इस वक्त मेरा राउटर ही मेरा DNS है। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। बट द पॉइंट इज के
ये मेरा होम नेटवर्क है, ठीक है ना। सो होम नेटवर्क के अंदर आई मीन होम नेटवर्क के अंदर ये सारी चीज़ें एक तरह से कैमोफ्लेज हुई हुई है। मेरी आईएसपी जो है ना, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ माई 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 बीइंग माई डीएनएस सर्वर, वही मेरा डीएचसीपी सर्वर है, और वही मेरा जो है वो इस प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे 18.0 जो है ना, इसके बिहाइंड बहुत सारे यूजर्स हैं। मैं, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई गेस्ट आया हुआ है तो वो भी हो सकता है। तो इसके बिहाइंड लेट से 8 to 10 डिवाइसेस चल रही हैं, बट वो सारे जो हैं उनके जो एड्रेसेस हैं वो प्राइवेट हैं, पब्लिक नहीं है। सो 18.18 ये मेरी मशीन का एड्रेस है, बट इसकी दुनिया में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब मेरे पैकेट्स या मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे नेटवर्क से बाहर निकल रही होगी, तो जो आईएसपी है वो मेरे एड्रेस को अपने पब्लिक एड्रेस से चेंज कर रही होगी, ठीक है जी। तो जो एक्चुअली एक पब्लिक एड्रेस आईएसपी ने मुझे असाइन किया होगा, मुझे इस वक्त विजिबल नहीं है, बट एक पब्लिक एड्रेस 18.1 के ऊपर बाइंड हुआ है इस वक्त, ठीक है ना। वो मेरी आईएसपी को पता है, मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता है। वो पब्लिक एड्रेस दुनिया में यूनिक है, वो रिपीट नहीं होगा, वो कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा होगा, वो कहीं पे कोई और यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो उस पब्लिक एड्रेस के थ्रू इस घर में मौजूद सारी की सारी डिवाइसेस पहचानी जा रही हैं। लेकिन क्या ये समझदारी होगी कि घर में मौजूद हर डिवाइस को अलग अलग पब्लिक एड्रेस दे दिया जाए? नहीं, इस तरह बहुत सारे एड्रेसेस ज़ाया होंगे, ठीक है। तो सीक्स के अंदर जब आप लोग लैब्स में बैठे हुए हैं, तो इट विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन के एवरीवन, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी फैकल्टी मेंबर विद इन सीक्स या विद इन नस्ट उसको एक सेपरेट पब्लिक एड्रेस असाइन हो। इट विल बी ऑल्सो अ वेरी कॉस्टली सोल्यूशन फॉर नस्ट। अगर नस्ट सबके लिए पब्लिक एड्रेसेस की रेंज बाय करने जाए तो नस्ट को बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। सो नस्ट उसके बगैर बजाय क्या करेगा कि अपने इदारे के अंदर नेट इस्तेमाल करेगा। राउटर जो है वो नेट बॉक्स के तौर पे ऐड करेगा, अंदर प्राइवेट एड्रेसिंग होगी, जिसकी मीनिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं होगी। और बाहर जब पैकेट्स या इंफॉर्मेशन जब बाहर जा रही होगी, तो राउटर्स जो हैं वो पब्लिक एड्रेस को, प्राइवेट एड्रेस को रिप्लेस करेंगे पब्लिक एड्रेस से, ठीक है जी। इसी को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आप नेटवर्क का एड्रेस ट्रांसलेट कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट टू पब्लिक। जब ट्रैफिक आउट गोइंग है, नेटवर्क से बाहर निकल रही है, और जब वापस जवाब आ रहा है, तो अब आपने वापस ट्रांसलेट करना है पब्लिक से प्राइवेट में, ठीक है। क्योंकि अब जब आप अंदर भेजेंगे अपनी ट्रैफिक को, तो अंदर तो वही 10.0 की रेंज चल रही है पूरे नस्ट में, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो रेंज है, ये इसलिए आपको बहुत कॉमन नजर आती है, ये वाली रेंज या ये वाली रेंज, बिकॉज ये रेंज है ही प्राइवेट रेंज, ठीक है। आई सर होप आई जब हैव। हम स्टैटिक आईपी परचेज करते हैं आईएसपी से, तो उस वक्त नेटिंग नहीं कर रहे होते, उस वक्त वही आईपी पूरी दुनिया को नजर आ रहा होता जब जब आप परचेज कर लेते हैं ना है स्टैटिक आईपी, स्टैटिक आईपी जी। देन यू आर पेइंग फॉर दैट आईपी। आप पे करते हैं, तो आप बिहाइंड नेट नहीं होते। आप अब लेट से अगर आप फैसला करते हैं कि मैंने अपनी कोई छोटी सी वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है, और उस केस में आप एक डोमेन परचेज करते हैं और एक आईपी परचेज करते हैं, ताकि आपकी मशीन अब ऑलवेज अप होगी। बिकॉज अभी मेरा ये जो पीसी है ये ऑलवेज अप मशीन नहीं है। मैंने लेक्चर देने के लिए इसको ओपन किया, उसके बाद मेरा मूड होगा तो बंद कर दूंगा। मैं इस पर कुछ वेब होस्टिंग नहीं कर रहा, ठीक है। मेरे दुनिया भर से यूजर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, दैट इज वाई मेरा एड्रेस 18.192.168.18.18 है। बट अगर मुझे ऐसा करना होगा कि मैं इसके ऊपर www.arsalanahmad.com जो है वो होस्ट करूं, तो मुझे डोमेन नेम भी परचेज करनी होगी, और पब्लिक आईपी एड्रेस भी। स्टैटिक स्टैटिक कह लें, ये जो आईपी एड्रेस है ये डायनामिक है। तो स्टैटिक का मतलब ही ये है कि स्टैटिक मींस फिक्स्ड। पब्लिक और प्राइवेट या स्टैटिक और डायनामिक, ये दोनों इंटरचेंजेबल जार्गन है, एक ही बात हो रही है, ठीक है। ठीक है ओके जी, जबरदस्त। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मास्किंग, ये हम पढ़ते हैं। मास्किंग एक फर्स्ट रियल कॉन्सेप्ट आया, अभी तक का लेक्चर बहुत आसान चल रहा था। मास्किंग इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द नेट आईडी फ्रॉम द आईपी एड्रेस, ठीक है। सो मास्किंग इज एक्चुअली द प्रोसेस which the routers of the entire globe, the entire global internet, the routers actually, the process they perform is the process of masking, ठीक है। What they do is that they perform the logical AND operation, okay, and on the basis of that logical AND operation they try to figure out the network address, ठीक है जी। So for instance, लेट्स अज्यूम यहाँ पे राउटर के पास इनकमिंग पोर्ट के ऊपर एक पैकेट आया। अब वी ऑल नो, हमने नेटवर्क लेयर के चैप्टर स्टार्ट करते हुए एक छोटा सा
स्लाइड के ऊपर एक छोटी सी डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, एक छोटी सी डेफिनेशन देखी थी, डिफरेंस बिटवीन राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। सो हमने देखा था कि राउटिंग जो है वो ओवरऑल एंड टू एंड पाथ्स को कैलकुलेट करने का नाम है, और इसके राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, राउटिंग एल्गोरिदम्स भी होते हैं, ठीक है जी। और हमने ये देखा था कि उसके नतीजे में what we get as a result of running the routing algorithm is the forwarding table on each and every device of the network. So राउटर के ऊपर जो forwarding table बनता है, बिल्ड होता है, इंस्टॉल होता है, वो राउटिंग एल्गोरिदम का नतीजा होता है। और फॉरवर्डिंग टेबल एक राउटर का कह लें कि इनहेरेंट या राउटर का जो एक कह लें कि लोकलाइज्ड किस्म का फिनोमिना है। राउटिंग ग्लोबल फिनोमिना की बात हो रही है, और फॉरवर्डिंग एक लोकलाइज्ड फिनोमिना है, राउटर का अपना फिनोमिना है, जिसमें राउटर बस इनकमिंग पोर्ट के ऊपर पैकेट को देखता है, उसके कंटेंट को पढ़ता है और डिसीजन लेता है कि मैंने इसको किस पोर्ट, आउटगोइंग पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन राउटर कर रहे होते हैं, ये मास्किंग के प्रोसेस के थ्रू कर रहे होते हैं। सो मास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नेटवर्क आईडी फ्रॉम द आईपी एड्रेस। सो एक पैकेट इनपुट हुआ पोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर आईपी एड्रेस था 141.14.2.21, ठीक है जी। राउटर ने उसके ऊपर मास्क को देखा, सॉरी, राउटर ने उसके उस आईपी एड्रेस के ऊपर मास्क को अप्लाई किया, ठीक है। और तीनों क्लासेस का फिक्स्ड मास्क है, ठीक है जी, डिफॉल्ट मास्क है हर क्लास का। और मास्क कैसे बनता है? इट्स वेरी इजी टू फॉर्म अ मास्क। वी हैव अ क्लास, अगर आपने क्लास आइडेंटिफाई करनी है, नाउ वी नो के क्लासेस की जो रेंज थी, याद है अभी हमने दो स्लाइड्स पहले पढ़ी थी, तो क्लास ए की जो रेंज थी वो 0 से 127 थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था all you need to do is you just need to look at the first octet, okay? So 0 to 127 is class A, 128 to 191 is class B, 192 to 223 is class C. And let's not move ahead because then multicast और future use के लिए reserve class है D और E. So हम class A B C तक रहते हैं। So हमारे पास क्लास ए के केस में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो आपका नेटवर्क आईडी है, और नेक्स्ट 3 ऑक्टेट्स आपके होस्ट आईडी हैं। क्लास बी के केस में फर्स्ट 2 नेटवर्क आईडी हैं, नेक्स्ट 2 आपके होस्ट आईडी हैं। और क्लास सी के केस में फर्स्ट 3 आपका नेटवर्क आईडी और नेक्स्ट लास्ट ऑक्टेट, ओनली लास्ट ऑक्टेट आपका होस्ट आईडी है। सो it is quite safe to say in the case of class A you have very few addresses, but the address range of each address is huge, ठीक है जी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यू नो 0 to हमने देखा 1 to 127, ये क्लास ए थी ना, ठीक है। ओनली 127 एड्रेसेस हैं, लेकिन हर उसके अंदर 2 रेस पावर 24 होस्ट हैं। इस केस में आपके पास यानी 2 रेस पावर 7 एड्रेसेस हैं। इस केस में आपके पास 2 रेस पावर फर्स्ट 2 बिट आप फिक्स कर देते हैं ना, फर्स्ट टू बिट्स आर इन द केस ऑफ क्लास बी, फर्स्ट 2 बिट्स आर 1 0, ओके। एंड नेक्स्ट 14 आप मूव कर सकते हैं। सो 2 रेस पावर 14 आपके पास नेटवर्क एड्रेसेस हैं, और हर नेटवर्क एड्रेस के अंदर 2 रेस पावर 16 आपके पास होस्ट एड्रेसेस हैं। इस केस में आपके पास 2 रेस पावर 21 नेटवर्क एड्रेसेस हैं, लेकिन there are huge number of network addresses, many network addresses, but all network addresses have very few host addresses. So only 2 रेस पावर 8 host addresses, which means के many network addresses, but उसके अंदर जो host address है वो 2 रेस पावर 8 means only 256 addresses होंगे हर किसी के अंदर। So class A, B और C addresses के अपने फायदे हैं। अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो मे बी क्लास C एड्रेस बाय नहीं करेगी, क्योंकि 256 होस्ट इज वेरी लेस फॉर अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रॉब्लली क्लास बी या क्लास ए की तरफ जो है वो जाएगी। बट एनीवे, वट एवर क्लास इट इज, डिफॉल्ट मास्क बनाना बहुत आसान है। जो नेट आईडी का पोर्शन है वो ऑल वंस होगा, और जो होस्ट आईडी का पोर्शन है वो ऑल जीरो होगा, आपका डिफॉल्ट मास्क बन जाएगा। सो क्लास ए के केस में आपका फर्स्ट ऑक्टेट नेट आईडी है, सो 255.0.0.0 ये क्लास ए का डिफॉल्ट मास्क है, ये क्लास बी का डिफॉल्ट मास्क है, क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क है। अब हमारे पास एक आईपी एड्रेस इनपुट हुआ, नाउ राउटर ने इसके ऑक्टेट को देखा 141, राउटर समझ गया कि 141 जो है वो क्लास बी की रेंज में फॉल कर रहा है, तो इसका डिफॉल्ट मास्क होगा 255.255.0.0। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के लॉजिकल एंड परफॉर्म करें, आपके पास ये आंसर निकलता है, ठीक है। आओ अब राउटर ने सिर्फ इतना देखना है अपने टेबल में कि 141.14.0.0 किस इंटरफेस के ऊपर अटैच है, और उस इंटरफेस के ऊपर वो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, ओके। तो ये प्रोसेस इस तरीके से परफॉर्म होता है, राइट। सर एक क्वेश्चन है जी बताइए। वो स्लाइड अच्छा अच्छा चलें, जी मैं जी ये बताइए कहना चाहता क्वेश्चन। हूँ कि हम सबनेट मास्क को जब हम खुद आईपीज असाइन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे
GNS3 वगैरह है टूल्स वगैरह के अंदर, हमने अगर कोई नेटवर्क हम्म, बना रहे हो तो जी उसके जी अंदर जी हम जी सबनेट मास्क वगैरह खुद असाइन करते थे, साथ में आईपी एड्रेस जब डालते थे। तो हम्म। क्या उस टाइम पे हम ये सबनेट मास्क को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 255.255.0.5 या फिर कोई और करते थे, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? वो मुझे उस अभी टाइम भी आते नहीं हैं। समझ आया, मैं इस वजह जी जी, टाइम पूछ रहा नो हूँ। वरीज, आज इंशाल्लाह सब समझ आएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा टाइम दे, अभी सब नेटिंग पढ़ी नहीं है। अभी मैं सिर्फ मास्किंग का प्रोसेस बता रहा हूँ। इससे आगे जाके हम सबनेटिंग स्टार्ट करने लगे। जब सबनेटिंग स्टार्ट होगी तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हम नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं, हमने ये नेटवर्क एड्रेस की बात की है। अभी हमने नेटवर्क को मजीद सब नेटवर्क में डिवाइड करने की बात नहीं की है, सब नेटिंग। वो जो आप मास्क असाइन करते थे ना, वो सबनेट मास्क असाइन करते थे, वो डिफॉल्ट मास्क नहीं था। जब आप सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं, when you do subnetting, when you perform subnetting, you actually change your default mask. Okay, let's say you have a class B address. Okay, so for instance, let's move towards the whiteboard. You have a class B address which is 141. um, you have a class B address which is 141 dot 14.0.0. This is a class B address because it's quite clear. We in this address, our first two octets are fixed, and this is our host ID region, and this is our playing field. So we have in total 2 raised power 16 addresses. Now, uh, no organization, in its in their sane mind would ever do a mistake like that. They just start giving addresses to users within the organization on first come first serve basis. So for instance, let's assume that Nust has bought this 141.14 range. Okay, एंड लेट्स से नस्ट के अंदर ये जो 10.0 की प्राइवेट रेंज है ये नहीं चल रही, नस्ट ने सारे अपने यूजर्स को प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेसेस देने हैं, यूनिक आईपी एड्रेसेस। ठीक है जी, तो जब आप नेस्ट में लैपटॉप ऑन करेंगे आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलेगा, पूरी दुनिया में वो यूनिक होगा और पूरी दुनिया में एड्रेसेबल होगा। ठीक है, और लेट्स से नस्ट ने ये रेंज बाय की है। तो मैं बल्कि आपके क्वेश्चन को आगे चलाता हूँ, नेक्स्ट बात सबनेटिंग की आ रही है, इसी में मैं सबनेटिंग भी बताता हूँ और इसी में मैं आपको मास्किंग दोबारा रिपीट भी करता हूँ। ठीक है, सो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहेगा कि बजाय इसके कि मैं इतने इस पूरे एड्रेस, ये दिस इज अ ह्यूज रेंज, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दैट, दिस इज 141.14 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इस रेंज से लेके 1 1 1 1 1 1 1 1 तो दिस इज, अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 141.14.0.0 से लेके 141.14.255.255, इट्स अ ह्यूज रेंज। 2 रेज़ पावर 16 मींस 65,000 एंड समथिंग एड्रेसेस बनते हैं इस रेंज के अंदर। सो नस्ट क्या करेगा, नस्ट अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो राइट डाउन करेगा। ठीक है जी, पेपर पे लेके आएगा। नस्ट कहेगा ओके, एच12 कैंपस में मैंने ये एड्रेस बाय किया है, मैंने एच12 कैंपस की पूरी नेटवर्किंग परफॉर्म करनी है। सो मेरे पास एच12 कैंपस में 13 स्कूल्स हैं। ठीक है, सीक्स, SMME, साडा, एसैप, रिम्स, अप टू सो ऑन। ठीक है, आई हैव 13 schools एंड लेट्स अज्यूम के सपोज नस्ट के पास जो है वो 8 डायरेक्टरेट्स भी हैं। ठीक है, फाइनेंस डायरेक्टरेट, एडमिन डायरेक्टरेट, मेन ऑफिस, हेडक्वार्टर, आईसीटी डायरेक्टरेट वगैरह वगैरह। ठीक है, सो नस्ट कहता है कि ओके, आई नीड 21 सब नेटवर्क्स। ठीक है, दिस प्लस दिस, आई नीड 21 सब नेटवर्क्स, आई नीड 21 सब नेटवर्क्स बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं अपने जो 15 to 20,000 स्टूडेंट्स और 2,000 फैकल्टी मेंबर्स एंड अप टू सो ऑन दैट मैनी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको मैं जस्ट डायरेक्टली एड्रेसेस देना शुरू कर दूं। नो, आई नीड टू हैव माई नेटवर्क अंडर माई कंट्रोल, सो आई शुड डिवाइड माई नेटवर्क इन मैनेजेबल चंक्स। ये जो मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करना है इसी को सब नेटिंग कहते हैं। सब नेटिंग, मैं अपने नेटवर्क के सब नेटवर्क्स बना रहा हूँ। सो आई नीड 21 सब नेटवर्क्स। नाउ द थिंग इज के आई हैव दिस एड्रेस, ओके, एंड मुझे इसी रेंज के अंदर करना है, ये मेरी प्लेइंग फील्ड है। ओके, 141.14 मैंने बाय किया आई कैन से इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर से, एंड 2 रेज़ पावर 16 इज माय प्लेइंग फील्ड। आई नीड टू this is what I have bought, this is my range, so whatever I can do is within this range. So 21 सब नेटवर्क बनाने के लिए what I have to do is कि मुझे अपनी होस्ट बिट में से कुछ बिट्स सेक्रीफाइस करनी होंगी। नाउ टू क्रिएट 21 नेटवर्क्स
I need to sacrifice 5 host bits because the next power of 2 is 32. Okay, 2 raised power 4 is 16. अगर मैं 4 बिट सेक्रीफाइस करूंगा तो 16 सब नेटवर्क बनेंगे, लेकिन मुझे 21 सब नेटवर्क चाहिए। अब पूरा पूरा नहीं हो सकता। ओके, देयर विल बी सम वेस्टेज बिकॉज वी आर डीलिंग इन द पावर ऑफ 2। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अदरवाइज पूरी दुनिया की के राउटर्स जो है वो फेल हो जाएंगे अगर हम पावर ऑफ 2 में डील नहीं करेंगे। वी आर डीलिंग इन बाइनरी। सो तो जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है वो 2 रेज़ पावर 5 32। सो आई हैव टू सेक्रीफाइस 5 बिट्स। तो जो मेरी इस वक्त मेरे पास ये नेट आईडी है, दिस इज माय नेट आईडी and this is my host ID, 16-bit net ID, 16-bit host ID. The process of subnetting create a 3-level hierarchy. Currently I have a 2-level hierarchy. The process of subnetting will create a 3-level hierarchy. What I will do is that 141.14 और उसके बाद मैं 5 बिट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 बिकॉज 2 रेज़ पावर 5 इज 32। और 5 बिट सेक्रीफाइस करने के बाद अब मेरे पास हर सब नेटवर्क के अंदर 5 के बाद बाकी रिमेनिंग बिट्स कितनी रह जाती हैं, 3 बिट्स रह जाती हैं, 1 2 3। ओके, और वो 0 0 0 डॉट ऑल जीरोज की रेंज से लेके 1 2 3 1 1 1 और डॉट ऑल वंस की रेंज पे जा सकती हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास 3 लेवल की हायरार्की बनेगी। सो द प्रोसेस ऑफ सबनेटिंग इज डिवाइडिंग योर नेटवर्क इनटू मैनेजेबल चंक्स एंड इट बेसिकली sacrifice some portion of host ID bits because this is your playing field। ये आपकी प्लेइंग फील्ड है, ये तो आपने परचेज किया है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यू हैव परचेज 141.14, दिस इज योर प्लेइंग फील्ड। तो इसके अंदर आपको अगर आपने अपने नेटवर्क के मैनेजेबल चंक्स बनाने हैं, सबनेटिंग करनी है, तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सो तला बेसिकली व्हाट यू गाइज यूज्ड टू डू वाज समथिंग लाइक दैट। एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू जब सबनेटिंग हो जाती है तो सबनेटिंग के बाद जो मास्क बनता है वो सबनेट मास्क होता है। आपने किया क्या है, ये क्लास बी का एड्रेस था, इसका डिफॉल्ट मास्क है 255.255.0.0। बट आपने किया क्या है, आपने डिफॉल्ट मास्क कैसे बनता है, डिफॉल्ट मास्क ऐसे बनता है कि जितनी नेट आईडी का पोर्शन है वो सारे वंस कर दें और जो होस्ट आईडी का पोर्शन है वो सारे जीरोस कर दे। बट आपने किया क्या, आपने नेट आईडी का पोर्शन एक्सपैंड किया है और होस्ट आईडी का पोर्शन श्रिंक किया है, तो आपका डिफॉल्ट मास्क भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आपने देखे ना, देखें इस केस में आपका नेट आईडी का पोर्शन 16 बिट का था, आपने 16 बिट 1 पुट किया तो बना 255.255 और फिर आपने 16 बिट 0 पुट किया तो .0.0, ये आपका डिफॉल्ट मास्क था क्लास बी का। लेकिन जब आपने सबनेटिंग की तो आपने बेसिकली डिफॉल्ट मास्क में वंस को एक्सटेंड किया, क्योंकि देखें आपने 3 लेवल की हायरार्की क्रिएट की। ये आपकी नेट आईडी बनी, ये आपकी नेट आईडी बनी, पहले भी थी, ये आपकी सबनेट आईडी बनी, ये नई चीज आपने इंक्लूड की है सबनेट आईडी, और ये अब जो बाकी रह गया ये आपकी होस्ट आईडी बनी, ये आपकी होस्ट आईडी बनी। ठीक है जी, आपने 3 लेवल की हायरार्की क्रिएट की है। सो नेट आईडी, सबनेट आईडी एंड होस्ट आईडी, और इस केस में आपने जो डिफॉल्ट मास्क है उसको भी आगे एक्सटेंड किया है, विच बेसिकली मींस कि अब आपका होस्ट डिफॉल्ट मास्क जो है वो उसमें 16 वंस नहीं होंगे, पहले 16 वंस थे, यहाँ पे ये 16 वंस थे ये सारे। ओके ठीक है, पहले 16 वंस थे और मास्क बन रहा था 255.255.0.0। बट अब आपने क्या किया है, 5 वंस मजीद ऐड किए हैं। तो वो जो 5 वंस आप अगर यहाँ पे ऐड, यानी कि अब आपका अब आपका जो सबनेट मास्क बनेगा, ये अब डिफॉल्ट मास्क नहीं होगा, अब आपने सबनेटिंग परफॉर्म कर दिया, आपका सबनेट मास्क जो बनेगा ये वो मास्क था तला जो आप अपने एग्जाम्पल्स में पुट इन करते थे। ठीक है, बट आपके क्वेश्चन के आंसर में मैंने बाकी सब भी आई होप यही चीज़ है भाई हमने पढ़नी भी थी। ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट एन आंसर टू वन सिंगल क्वेश्चन, यही वो चीज़ है जो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने पढ़नी भी थी। अभी मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन स्लाइड पे शो करता हूँ, यही सारी बात हमने पढ़नी थी। तो डिफॉल्ट मास्क अब हमारा चेंज हो गया और सबनेट मास्क बन गया और एक्सटेंड हो गया, तो हमने 5 मजीद वंस ऐड किए यानी एक्सटेंड कर दिया है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 255.255 डॉट थर्ड ऑक्टेट में 1 2 3 4 5 0 0 0 डॉट ऑल जीरोज। तो अब जो हमारा मास्क बनेगा वो बनेगा 255.255 डॉट, ये क्या बनता है जी, 11111, ये बनता है जी 248.0, ये हमारा मास्क है। और ये वो मास्क थे जो आप अपने जिस भी टूल पे आप काम कर रहे थे, NS2 या पैकेट ट्रेसर या कहीं पे भी, वहां पे आप ये मास्क जो है वो असाइन किया करते होते हैं अपनी एग्जांपल के अंदर जब आप सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इफ यू गो बैक टू स्लाइड, यहाँ पे अगर हम देखें
तो एग्जैक्टली अब ये बातें आपको सारी बिल्कुल सही समझ आएंगी। सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द क्लास ए, बी और सी नेटवर्क इनटू मोर मैनेजेबल चंक्स दैट आर सूटेड टू योर नेटवर्क साइज एंड स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक पूरी रेंज बाय करके उसको बस पहले आइए पहले पाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं देना शुरू करेगी। अगर नस्ट ऐसा करे तो नस्ट के लिए एक बहुत मज्जा अपने नेटवर्क को। ओके, सो नस्ट ने 10.0 ऑल्दो प्राइवेट 0.0.0 जो विद इन द नेटवर्क चल रही है, बट इवन उस प्राइवेट रेंज को भी नस्ट ने मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड किया। सबनेटिंग के 10.1 जो है वो मैंने पहले भी बताया, मेन ऑफिस है। 10.2 जो है वो एनबीएस है, 10.3 जो है वो सीक्स है, एंड अप टू सो ऑन, आगे अप टू सो ऑन इस तरीके से मूव हो रहे हैं। ठीक है जी। सो सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एड्रेस इनटू मोर मैनेजेबल चंक्स दैट आर सूटेड टू योर नेटवर्क साइज एंड स्ट्रक्चर। और सबनेटिंग अलाउज अ 3 level of hierarchy: net id, subnet id and host id. And please note, original network id remains the same and it designates the site. नस्ट को बाहर से कौन पहचान, लोग कैसे पहचानेंगे? 141.14.0.0, दैट्स इट। ये सारा प्रोसेस जो हुआ है ना, ये जो मैंने अभी स्लाइड ये बोर्ड पे करके दिखाया, ये सारा प्रोसेस क्या होगा? दिस प्रोसेस रिमेन्स ट्रांसपेरेंट आउटसाइड ऑफ नस्ट, आउटसाइड द साइट। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वालों के लिए प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। उनको नहीं पता कि 141.14.0.0 अंदर कैसे मैनेज हुआ है। ऑल दे नो इज के इस इंटरफेस के ऊपर 141.14 अटैच है। तो फॉर इंस्टेंस अगर ये एचईसी है, ठीक है, एचईसी पर्न पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये पर्न का राउटर है, ठीक है जी, ओके, एचईसी में पड़ा हुआ है और नेस्ट के पास बैंडविड्थ आ रही है। ये इसकी डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ओवर हेयर, यहाँ पे नेस्ट अटैच है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे फास्ट अटैच है, यहाँ पे IIU अटैच है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ओके, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इस राउटर के पास एक फॉरवर्डिंग टेबल है। अब मास्किंग की बात कर लेते हैं। इस राउटर के पास आईपी एड्रेस आया, ठीक है, ओके, ये बाहर पब्लिक इंटरनेट है, ग्लोबल इंटरनेट है, ठीक है जी, पब्लिक इंटरनेट है पूरा आपके पास। यहाँ से एक पैकेट आ रहा है, ठीक है जी, एंड ये पैकेट इस पोर्ट के ऊपर आता है। राउटर क्या करेगा? राउटर कैन नॉट स्टोर the IP addresses of all the users of NUST and all the users of FAST and IIU and all other universities. Router will do what? Router के पास कुछ लाइंस होंगी, खाली सिर्फ नेटवर्क एड्रेसेस होंगे, साइट आईडी जिसे कहते हैं, साइट आईडी, ओके। 141.0 किस पोर्ट पे है? ओके, ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, ये पोर्ट 3 है, ये पोर्ट 4 है, पोर्ट 5 है। फॉरवर्डिंग इज अ वेरी वेरी लोकल प्रोसेस, एक क्विक डिसीजन है, ओके। ये एड्रेस है इस पोर्ट पे है, ये एड्रेस है इस पोर्ट, ये नेटवर्क है इस पोर्ट पे अटैच है, ये नेटवर्क है इस पोर्ट पे अटैच है, ठीक है जी। तो अगर ये 141.14.0.0 है, तो यहाँ पे इसके टेबल पे ये बात लिखी हुई है कि 141.14 किस पोर्ट पे? पोर्ट 3 पे फॉरवर्ड करो। इसने सिर्फ ये करना है कि आने वाले पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखना है, मास्किंग का प्रोसेस अप्लाई करना है ऊपर नीचे रख के, और इसने देखा कि आने वाला जो आईपी एड्रेस है उसका आने वाला जो पैकेट है उसका आईपी एड्रेस लेट से है 141.14.17.17, सपोज कर लें ये है, सपोज कर लें, ठीक है जी। तो इसने कहा ओके जी, क्लास बी डिफॉल्ट इज 255.255.0.0, ऊपर नीचे रख के मास्क अप्लाई किया, 141.14.0.0 ही आएगा। लॉजिकल एंड परफॉर्म करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, वेन एवर यू परफॉर्म लॉजिकल एंड विद ऑल वंस, तो वही चीज आंसर आती है। ऑल वंस के साथ जब भी लॉजिकल एंड परफॉर्म होता है तो 141.14 आ जाएगा, और जब भी ऑल जीरोस के साथ लॉजिकल एंड परफॉर्म होता है तो जीरो ही आंसर आता है, तो 141.14.0.0 ही आएगा। तो पर्न का राउटर ये डिसाइड कर लेगा ओके, ये जो पैकेट है ये किसी ऐसे यूजर का है जो, नाउ आई डोंट केयर 17.17 कौन सा है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी यहाँ नस्ट के गेटवे राउटर की है कि वो फैसला ये करेगा, ठीक है, ओके, कि 17.17 कौन है। बट मुझे ये पता है कि ये पैकेट जो है ये पोर्ट 3 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये इस नेटवर्क से बिलोंग करता है। जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, मैंने मास्किंग का प्रोसेस अप्लाई किया और मुझे पता चला कि ये इससे इसको इस आउटपुट पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड करना है मुझे। यही वो खूबसूरत प्रोसेस है जिसकी वजह से राउटर को ये इन सारे होस्ट और इन सारे होस्ट और इन सारे होस्ट के आईपी एड्रेसेस सेव नहीं करने पड़ते, अदरवाइज दुनिया भर में जो राउटिंग टेबल है वो ब्लो अप हो जाए, ठीक है जी, ओके। दे विल जस्ट क्लैश, सॉरी क्लैश कह रहा हूँ, क्रैश, ठीक है जी। दे जस्ट नीड टू सेव द साइट एड्रेस, ओके, और विद इन दिस साइट whatever is happening is transparent to the outer world, okay।
पर्न के राउटर को बस इतना पता है ये जो कुछ हो रहा है ना, ये जो कुछ हो रहा है, ये नस्ट की इंटरनल गेम है, ये नस्ट के अंदर की बातचीत है सारी, ठीक है जी। ये ट्रांसपेरेंट है आउटर वर्ल्ड के लिए। आउटर वर्ल्ड को 141.14.0.0 ये साइट नजर आ रही है, ठीक है। बट जब इस राउटर के पास आएगा ना, इस राउटर के पास, तो ये जो राउटर है ना, ये 141.14.0 सॉरी इस आईपी एड्रेस, अब ये पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड हो गया, यहाँ से फॉरवर्ड हो गया। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे चलाते हैं। ये पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड हो गया, अब ये पैकेट इस राउटर के पास आया। ये जो नस्ट का राउटर है ना, ये इससे कुछ ज्यादा जानता है, ठीक है। और ये कह लें कि ये साइट का अपना राउटर है, ठीक है। इस राउटर को की का दर्द सर था भी नहीं। दिस राउटर डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंटरनल थिंग्स, बिकॉज अदरवाइज इसके लिए जो फॉरवर्डिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नहीं इसकी परवाह कि ये 17.17 की सबनेट का एड्रेस है। बट ये जो राउटर है ना, जब ये लॉजिकल एंड परफॉर्म करेगा तो ये डिफॉल्ट मास्क यूज़ नहीं करेगा। ये कौन सा मास्क यूज़ करेगा? ये जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 255.255.248.0। और अभी अगर हम ये करके देखें, इसी एग्जांपल को आगे चलाते हैं, तो सपोज कर लें ये पैकेट अब यहाँ पहुंचा है और ये पैकेट है और इस पैकेट के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है जी कि मैं हूँ 141.14.17.17। तो नेस्ट का जो राउटर है इसको अपनी सबनेटिंग का पता है, ये कहेगा ओके जी 255.255.248.0 के साथ मैं लॉजिकल एंड परफॉर्म करता हूँ। और जो आंसर आएगा बेसिकली, कीजिए जी जल्दी से कीजिए, बताइए क्या आंसर आता है, काइंडली करें। जी बिल्कुल ठीक है मोहम्मद गफूर, थैंक्स फॉर शेयरिंग, आपने ठीक शेयर किया। कीजिए जी, बताइए मुझे। नस्ट का राउटर जब सब नस्ट का राउटर डिफॉल्ट मास्क के साथ नहीं कर रहा, वो सबनेट मास्क के साथ परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो सबनेट मास्क के साथ लॉजिकल एंड परफॉर्म करेगा। ये भी मास्किंग का प्रोसेस है, ये भी मास्किंग का प्रोसेस जो पर्न ने किया था, पर्न के राउटर ने एचईसी में, ठीक है। लेकिन उसने एक बड़े मास्क के साथ परफॉर्म किया था बिकॉज उसको साइड एड्रेस जानना था कि मैंने पोर्ट 3 पे भेजना है या 4 पे भेजना है, फास्ट की तरफ, या 5 पे भेजना है आईआईयू की तरफ, या 2 पे भेजना है किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है जी। बट जब नस्ट के पास आ गया तो अब ये ज्यादा प्रिसाइज मास्क के साथ परफॉर्म कर रहा है, सबनेट मास्क के साथ। कम ऑन जी मेरे, यू गाइस आर नॉट लिसनिंग, समवन शुड टेल मी द आंसर। लॉजिकल एंड का क्या आंसर आएगा? सर 248 को भी 1 में कन्वर्ट करें। अच्छा 1 में कन्वर्ट हाँ करें, जीरो। 5 वंस और 3 जीरोस। तो सर वही आएगा 255 और फिर नहीं 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 सर नहीं। नहीं नहीं, आप एनीवन एल्स प्लीज। कोई नहीं कर रहा, पेन पेपर लेके नहीं बैठते लेक्चर में, ज़ाहिर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ज़रूरत क्या है। अच्छा चलें, अच्छा एक बात याद रखिएगा, 141 और 255, कोई भी चीज़ जब ऑल वंस के साथ लॉजिकल एंड होती है, ठीक है जी, कोई भी चीज़ ऑल वंस के साथ, तो क्लीन अप 141.14.17.17 और इसका सबनेट मास्क नस्ट के राउटर को पता है 255.255.248.0। ऑल वंस ये देखें, ऑल वंस के साथ हो रहा है, 141 एज इट इज आ जाएगा, अगेन ऑल वंस 14 एज इट इज आ जाएगा, ऑल जीरोज डॉट जीरो ही आएगा। ऑल यू नीड टू केयर अबाउट इज द थर्ड ऑक्टेट। आपने 17 और 248 का बाइनरी लिखना है ऊपर नीचे और इसको लॉजिकल एंड करना है, ठीक है जी। आपने 17 और 248 का बाइनरी लिखना है। 248 का बाइनरी तो है 111111000, ये अभी हमें पता है। 17 का बाइनरी क्या है जी, जल्दी से बताएं। 10001। 10001 और पीछे भी सारे जीरोज होंगे, ठीक है। अब ये कर लेते हैं हम, सिंपल सी बात थी, ये था। ये मैंने गलती की है ऊपर नीचे लिखने में। 10001 बताया ना आपने, 1 ट्रिपल, ओहो, लेट मी राइट अगेन, ये जस्ट क्रॉस इट। सर सही है वन वन लिखा हुआ सर। थोड़ा सही सा लिखा लेफ्ट हुआ होना था। है, बस वो अगर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 10001 आपने बताया, 1 1 0 0 1 और पीछे 0 0 0। अब जी हम लॉजिकल एंड परफॉर्म करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी?
लॉजिकल लाइन परफॉर्म करेंगे तो 1 0 इज 0, 0 0 इज 0, 0 0 इज 0, 1 0 इज 0 एंड 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास, और फिर पीछे सारे जीरोस 1 0 0 1 0 0 1 0 0. सो दिस इज 16. ओके, तो दिस इज 16.0. ओके, अब ये कोई सबनेट होगा अंदर, ठीक है. यहाँ पे याद करें, जब हम नेस्ट की सबनेटिंग कर रहे थे तो हमें 21 सबनेट्स रिक्वायर्ड थे, और 21 सबनेट्स, अब अगर आप नोटिस कीजिए तो ये कौन सा सबनेट बनता है, उसके लिए आपको एक्चुअली सबनेटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है. वो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, बट द थिंग इज के अब ये जो एड्रेस निकल रहा है ना, ये उस सबनेट का एड्रेस निकल रहा है. तो ये जो राउटर है ना, इसको पता है कि यहाँ पे मेरे पास सीक्स अटैच है, यहाँ पे मेरे पास एनबीएस अटैच है, एंड अप टू सो ऑन, और दूसरे स्कूल्स अटैच हैं सारे के सारे, ठीक है ना. सो अब ये उस पार्टिकुलर की तरफ भेजेगा जो कि है 16.0. ओके, 141.14.16.0, ये जो भी है ना, सर ये तो इसकी तरफ भेजेगा. जो यूजर है जी .17 वाला लास्ट में, जो जो जी मेन जी आईपी है, तो जी जी. उसके लिए .16 वाली नेटवर्क आईडी होगी, या फिर वो वही नेटवर्क आईडी होगी जो सी उससे मेन नस्ट को मिल रही है, उसको कहेंगे हम? बिल्कुल सही, उसके लिए .16 वाली नेटवर्क आईडी होगी, ठीक है. उसके लिए जो उसका नज़दीक तरीन गेटवे राउटर है ना, जिस सबनेट का वो पार्ट है, वो नेटवर्क आईडी होगी, ठीक है. ओके, बैक टू द यस बैक सर. सर बैक बैक टू फर्स्ट फर्स्ट एक मिनट, जस्ट जस्ट मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूं. बैक टू अवर फर्स्ट, ये जो यूजर है ना, ये जो यूजर है, ये इसके लिए जो नेटवर्क आईडी है वो 2.0 है, ये 2.0, ठीक है. ये यूजर कह रहा है मैं किस नेटवर्क का पार्ट हूं, मैं 3.0 का पार्ट हूं. ये कह रहा है मैं किस नेटवर्क का पार्ट हूं, मैं 1.0 का पार्ट हूं. अब जब इस राउटर के पास पैकेट आ रहा है तो अकॉर्डिंगली सबनेट मास्क अप्लाई करके ये भेज रहा है, ठीक है, सही करेक्ट सबनेट की तरफ, ठीक है. और इसकी बड़े लेवल पे एग्जांपल अभी हमने देखी है यहाँ पे, ये देखें नस्ट के केस में. अब जब हम सबनेट डिजाइन करने जाएंगे ना, तो सबनेट बाय द वे डिजाइन कैसे होंगे, पहला सबनेट क्या होगा भला, पहला व्हाट विल बी द फर्स्ट सबनेट. फर्स्ट सबनेट अगर आपने डिजाइन करना है तो फर्स्ट सबनेट क्या बनेगा, ये यहाँ पे मैंने सबनेटिंग अभी परफॉर्म की थी, मुझे 21 सबनेट नेटवर्क रिक्वायर्ड थे, मैंने 5 बिट सेक्रीफाइस की थी, ठीक है ना, होस्ट आईडी की, क्योंकि 2 to the power 5 32 होता है, तो मेरे पास 32 सबनेट बनेंगे. फर्स्ट सबनेट क्या होगा, फर्स्ट सबनेट कोई रेंज बता सकता है फर्स्ट सबनेट की? 0 to 31 होगा सर. पहला 0 फर्स्ट डॉट सबनेट, फर्स्ट सबनेट के सबनेट की 5 बिट्स हैं. सबनेट आईडी, ये नेट आईडी है, ये नेट आईडी है. सबनेट आईडी मैंने 5 बिट सेक्रीफाइस किए, 5 बिट्स उधार लिए हैं होस्ट आईडी के पोर्शन से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है. और फिर हर सबनेट के अंदर मेरे पास 8 + 3 11 बिट्स बनती हैं, 2 to the power 11 एड्रेसेस हैं, ठीक है. 1 2 3 डॉट 8 बिट्स एंड 8 बिट्स यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट, और 1 2 3 और फिर 8 बिट्स यहाँ पे, ठीक है. तो इसकी रेंज क्या होगी, पहला सबनेट क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 ऑल जीरोज, ठीक है जी. और फिर इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 0 0 और फिर अगेन 8 जीरो से लेके 1 1 1 और फिर 8 1. अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा जो पहला सबनेट है वो है 14 डॉट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है .0, ठीक है. डॉट, ये 8 जीरोज हैं, ये भी 0 बनेगा, से लेके रेंज बनेगी 14 डॉट, ऑब्वियसली इसके पीछे फर्स्ट ऑक्टेट 141 है, 14 डॉट, ये क्या है, व्हाट इज दिस 7.255, ठीक है. ऑल जीरो से लेके ऑल वंस. और फिर सेकंड सबनेट क्या होगा, अब आपको सबनेट की जो 5 बिट्स हैं इसमें चेंज करनी है. सेकंड सबनेट होगा 0 0 0 0 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा. अगेन उसके अंदर सबनेट की रेंज क्या बनेगी, ऑल जीरो से लेके ऑल वंस, समझ रही. तो वो अगर आप लिखने जाएंगे तो वो उसकी रेंज बनेगी 14 डॉट 8.0 से लेके 14 डॉट, अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, .15.255. और जो थर्ड सबनेट होगा ना, 14.16.0 से लेके 14.23.255 होगा. आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, इसका पार्ट था वो होस्ट, वो जो पर्न के पास पैकेट आया ना, जो पर्न ने पैकेट आगे फॉरवर्ड किया 17.17, वो इसके अंदर लाई करता था. उसका वो 17.17 जो होस्ट था, उसका वो किस नेटवर्क का, किस सब नेटवर्क का पार्ट था, वो 16.0 का पार्ट था, 141.14.16.0. और जब नस्ट के राउटर ने
ये सबनेट मास्क अप्लाई किया, जो सबनेट मास्क अप्लाई किया तो यही आंसर निकला 141.14.16.0। इट इज ब्यूटीफुल, नो? समझ आ रही है सबको बात जी? सर मुझे स्लो की समझ नहीं आई, क्वेश्चन उसमें बहुत सारे, वो जो पॉइंट वाली आपको एग्जांपल आप देते हैं आपको फ्लो ये की वाली। समझ नहीं आई? सर फ्लो मीन जब उसने पैकेट, आपने बताया ना कि उसने सबनेट लगाया 14.17.17 पे, जी तो उसको पता चल गया कि ये उसके पास जो मास्किंग के बाद आया तो 141.14.0.0 है, तो उसे पता चल गया कि ये नस्ट का पैकेट था। यस, ठीक है आगे सर फिर न, फॉरवर्ड कर दिया। उसे उसे ये वाला जब उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस था उसके अंदर तो 141.14.0.0 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि नस्ट का पब्लिक आईपी तो सिर्फ ये है। अंदर क्या किस बंदे को है वो तो बाहर किसी को नहीं पता, पर्न को नहीं पता कि अंदर किस यूजर का है, उसके लिए तो तो सिर्फ एक ही विजिबल आईडी। तो पर्न को नहीं पता चलेगा ना, पर्न ने 141.14.0.0 इस नेटवर्क की तरफ फॉरवर्ड किया है। ये नहीं तो नेटवर्क यहाँ डेस्टिनेशन है। आईपी इसका ये नहीं होना चाहिए था .0.0। नहीं, पैकेट में जो डेस्टिनेशन आईपी लिखा हुआ होगा वो तो ये लिखा हुआ। अच्छा, आप अब नेट को और इसको मिक्स कर रहे हैं, देखें। आपने बताया ना आ, एक ही आईपी होता है, पब्लिक नहीं आईपी। नहीं, मैंने एग्जांपल देते हुए ये बोला था कि सपोज कर ले कि नस्ट ने ये फैसला किया कि मैं अपने सारे यूजर्स को पब्लिक एड्रेसेस दूंगा। याद है आपको? अच्छा ऑब्वियसली नस्ट ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है अंदर तो 10.0 की रेंज चल रही है, ठीक है? ठीक है ओके। ठीक है ठीक है, जी फिर जी ठीक है। जी जी, हम सपोज करते हैं कि 16.0, ये जो जिस जो नेटवर्क है, ये जो थर्ड नेटवर्क है, ये सपोज कर लें सीक्स है। और सीक्स के अंदर जो यूजर हैं आप हैं, ठीक है? 17.17 आप हैं, और आपका जो आईपी है वो यूनिक है। वो यूनिक है और पूरी दुनिया को पता है कि अली अमजद जो है वो 17.17 यहाँ पे हैं, ठीक है? नेट यहाँ नहीं चल रहा, सपोज कर लें। मैंने सपोजिशन शुरू में ली थी ताकि सर वो एग्जांपल को मैंने मिस कर लेके दिया, चल सॉरी। सके। नो वरीज, नो वरीज। सो लेकिन ये एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है? और इसमें सबनेटिंग भी हमने देखी, और इसमें मास्किंग भी हमने देखी। सो आई होप क्लियर होगा, ये बात समझ आई है सबको जी? ये देखें, ये सबनेटिंग हमने परफॉर्म की, और जब आप करते हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? यू आर सेक्रीफाइसिंग सम होस्ट आईडी बिट्स, ये सारी बातें। तो ये डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ सबनेटिंग सिंपली एक्सटेंड टू द पॉइंट वेयर द वंस ऑफ मास्क स्टॉप एंड जीरो स्टार्ट। ओके, आप क्या कर रहे हैं? आप उस पॉइंट को एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले डिफॉल्ट में क्लास बी के वंस ऑफ मास्क कहाँ स्टॉप हो रहे थे? किस बिट पे स्टॉप हो रहे थे? डिफॉल्ट डिफॉल्ट के केस में क्लास बी के वंस कहाँ स्टॉप हो रहे थे? कम ऑन, यू गाइस आर विद मी और नॉट? 16th बिट पे, 16th बिट पे स्टॉप हो रहे थे। 255.255.0.0 ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क था क्लास बी का। तो हमने क्या किया? सबनेटिंग परफॉर्म की और वंस को एक्सटेंड किया। द प्रोसेस ऑफ सबनेटिंग सिंपली एक्सटेंड्स द पॉइंट वेयर द वंस ऑफ मास्क स्टॉप। वंस ऑफ मास्क यहाँ पे स्टॉप हो रहे थे, इस जगह पे स्टॉप हो रहे थे 16th बिट पे। हमने एक्सटेंड कर दिया इसको, हमने इसको एक्सटेंड किया। कहाँ तक हम लेके गए? हम इसको, ये देखें, ये 5 बिट्स एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है? और हम इसको ले गए 248 तक, यहाँ तक, ये 248 तक, ये नया मास्क बना। तो जो प्रोसेस ऑफ सबनेटिंग सिंपली एक्सटेंड द पॉइंट वेयर द वंस ऑफ मास्क स्टॉप एंड जीरो स्टार्ट। यही बात पढ़ी है अभी हमने। इसी की डेफिनेशन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये सब हमने अभी देखा है एग्जाम्पल में, ठीक है? विदाउट सबनेटिंग ऐसा होता है, नेट आईडी होस्ट आईडी 2 लेवल की हायरार्की है, विद सबनेटिंग आपके पास 3 लेवल हायरार्की बनती है, ठीक है जी? ओके, इस एग्जाम्पल से हम सर स्टार्ट लेते हैं ब्रेक के बाद। जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये फॉरवर्डिंग टेबल जो राउटर का होता है उसमें वो यही चीज कैलकुलेट करता है मास्किंग वगैरह? एग्जैक्टली बिल्कुल, राउटर मास्किंग का प्रोसेस करता है। ये देखें, ये मैंने बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त एग्जांपल देके बताया आपको। आप कह रहे होंगे खुद ही अपनी अपनी एग्जांपल की तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। आई टेंड टू गिव दिस एग्जांपल बिकॉज ये हमारे लिए प्रैक्टिकल भी है। हम सब नेस्ट के यूजर्स हैं, और पर्न पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क की बैंडविड्थ यूज़ भी कर रहे हैं। तो जो द एग्जांपल आई एम गिविंग, अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स, जो नंबर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो शायद डिफरेंट हो सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये एक्चुअली ही ऐसा ही होता होगा, ठीक है जी? तो राउटर जो प्रोसेस परफॉर्म करता है, आई थिंक जवाद क्वेश्चन कर रहे थे, वो मास्किंग ही का प्रोसेस है, और उसकी बेस पे वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि मास्क के साथ जब मैंने लॉजिकल एंड किया तो मेरे पास नेटवर्क क्या निकला।
और फिर उसने अपने फॉरवर्डिंग टेबल पे बस ये देखना है कि ये नेटवर्क किस पोर्ट पे अटैच है। 141.14.0.0 आंसर आया, ओके जी, ये फॉरवर्डिंग टेबल को देखा, मैच किया, मैच एंड एक्शन, ठीक है, मैच जब मेरे पास निकल आया तो एक्शन क्या है, थर्ड पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दो, ओके जी, फॉरवर्ड ऑन थर्ड पोर्ट, दैट्स इट, ठीक है। सर जब नए होस्ट ऐड करते हैं नेटवर्क में तो क्या तमाम जो नेटवर्क के राउटर्स हैं वो डज अपने आप नॉट को मैटर, अपडेट करते हैं? नहीं, जब तक ये साइट आईडी चेंज नहीं होती है, इसके अंदर हजारों होस्ट और ऐड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये साइट आईडी बाहर चेंज नहीं हो रही। अगर नस्ट की साइट आईडी चेंज होती है तो अब उसको नई साइट आईडी एडवर्टाइज करनी होगी, नई साइट आईडी एडवर्टाइज करनी होगी, ठीक है। और फिर राउटर जो है वो अकॉर्डिंगली अपने राउटिंग टेबल, अपने रूट्स कैलकुलेट करेगा, अपने फॉरवर्डिंग टेबल को दोबारा पॉपुलेट करेगा, और जो एडवर्टाइजमेंट उसको मिली है वो आगे मजीद वो एडवर्टाइजमेंट भेजेगा भी। ये प्रोसेस बीजीपी के अंदर परफॉर्म होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। सर एक थोड़ी सी बात पूछनी है इफ यू डोंट माइंड के, मतलब ये सारी चीजें तो जी। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं राउटर्स, तो ह्यूमन जी इंटरवेंशन नहीं होती उसमें, तो फिर सर पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को? जबरदस्त, बिल्कुल सही बात। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं रोकी तो मेरा आंसर रिकॉर्डिंग का पार्ट बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही होती है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसलिए कैलकुलेट हो पाती है क्योंकि एक ह्यूमन ने स्टार्ट में नेटवर्क को सही एडमिनिस्टर किया होता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन नहीं जाती। ये जो हुआ है ना, ये जो एग्जांपल मैंने दी है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये एक समझदार नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्किंग को जानता होगा, समझता होगा, वही ये करेगा कि 10.0.0.0 को डिवाइड करेगा, और 10.1 एक को देगा, 10.2 एनबीएस को देगा, और 3 सीक्स को देगा, और फिर सीक्स के अंदर सीक्स का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मजीद डिवीजन करेगा, ठीक है जी, कि किस तरीके उसने डिफरेंट लैब्स के अंदर मैनेजेबल चंक्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद वंस योर नेटवर्क इज सेट अप एंड रनिंग, तो यस, राउटर्स जो हैं वो उन प्रोटोकॉल्स पे वर्क कर रहे हैं, ओएसपीएफ और बीजीपी, जिनके अपने सेंटेक्स और सेमेंटिक्स हैं, और वो अकॉर्डिंगली अपने राउटिंग टेबल्स को हेलो पैकेट्स एक्सचेंज करेंगे, पॉपुलेट कर लेंगे। जवाब, मेरी बात समझ आ रही है आपको भी और सब लोगों को भी? अच्छा क्वेश्चन है। ये यस सर। चीजें, ह्यूमन इंटरवेंशन, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम तो हो जाएगी, बट नॉट फ्रॉम द स्क्रैच, मिनिमम नहीं होगी, ठीक है ना। देयर विल बी नो मैजिक जिसकी बेस पे आप जस्ट यू सी, मतलब देखें, डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिक एड्रेस कैलकुलेशन कर, असाइनमेंट कर रहा होता है, बट इवन वो भी उसी बेसिस पे कर रहा होता है जिस बेसिस पे पूल्स उसको पहले से डिफाइन करके दिए हुए होते हैं, कि ये जो यूजर जो अप हुआ है, ये जिस साइट से हुआ है, जिस सबनेट का पार्ट है, मुझे उसी पूल में से एड्रेस बताना है, तो देयर इज समवन जिसने उसको वो पूल्स डिफाइन करके दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑटोमेशन आई है, ऑटोमेशन फ्रॉम दी स्क्रैच नहीं आ गई है। ऑटोमेशन चाहिए, ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क ऑटोमेशन के ऊपर दुनिया में बेतहाशा काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, बट द थिंग इज के उससे पहले नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एंड मजे की बात, इवन उसके बाद भी, लेट्स से आप किसी अप एंड रनिंग नेटवर्क का पार्ट बने जाके, तो फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्यों हायर करना है, नेटवर्क इंजीनियर्स की क्यों ज़रूरत है, नेटवर्क डिज़ाइनर्स की क्यों ज़रूरत है, नेटवर्क आर्किटेक्ट्स की क्यों ज़रूरत है? उसकी रीज़न ये है कि वो जो ऑटोमेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग, या वो ऑटोमेट भी नेटवर्क वही कर सकता है जो जो ये सारी बातें समझता है। जिसको बीजीपी की पॉलिसीज ही नहीं पता, वो पॉलिसी बनाएगा कैसे? पॉलिसी ऑटोमेटिक नहीं बन रही है, पॉलिसी बनाने वाला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर ही है, ठीक है। ओके, हम मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे ज़रूर, अगर डिटेल में ना पढ़ सके तो एसडीएन का जो कोर्स है नेक्स्ट सेमेस्टर में आई एम ऑफरिंग, उसके स्टार्ट में ये बातें ज़रूर डिस्कस होंगी, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और ओएसपीएफ वगैरह। तो जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो पॉलिसीज़ जो हैं, वो पॉलिसीज़ पहले बनेंगी तो नेटवर्क ऑटोमेशन की तरफ जाएगा ना, ठीक है जी। सो दैट इज़ वाई ये मतलब ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप ये बातें बनना, तो फिर हम फ्रॉम डे वन रिसर्च पेपर भी पढ़ना शुरू कर दें बस, ठीक है, एंड दैट्स इट। अदर देन सर दैट हम इसकी कुछ एक भी ना और करें। वजह भी है पढ़ने की। जी, प्लीज इनलाइटन अस अली, ऐड करें, आप कुछ सर ऐड ये ना हो करना ना चाहते कि हैं? कोई हम में से बैठ के सबनेटिंग इन्वेंट करे और एंड पे पता चले ये तो ऑलरेडी इन्वेंटेड थी, अच्छा अच्छा। हमने अच्छा, पढ़ी नहीं थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी एक वजह हो सकती है। चलें जी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ये काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है, इसका साइज